ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ that is about the question ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ which of the following is not a type of dance of Punjab। अब क्वेश्चन की है नॉट ए टाइप ऑफ डांस, तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਂਸ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਮਰ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਲੁੱਡੀ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਜੁੱਲੀ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਚੋਪ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ, that is ਚੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਪੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਢਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਢਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੋਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਝੂਮਰ ਦੀ, ਝੂਮਰ ਡਾਂਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੁੱਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਿਬੜ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈਏ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੁੱਡੀ ਡਾਂਸ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ। ਔਰ ਜੁੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਾਂਸ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਯੋਧਾ ਅਕਬਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਟਰਾਂਸ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਮਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਝੂਮਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਡਾਂਸ ਨੇ। ਚੋਪ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਚੀਚੋ ਚੀਚ ਗਨੇਰੀਆਂ, ਦੋ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਗੇਮ ਪਲੇਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਗਨੇਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਚੋ ਚੀਚ ਗਨੇਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਨੇਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੀਚੋ ਚੀਚ ਗਨੇਰੀਆਂ, ਦੋ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੇਮ ਪਲੇਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੈਡਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅ ਗੇਮ ਪਲੇਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। The Vedas were composed, ਵੇਦਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੇਦਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 400-500 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਸਵਤੀ ਰਿਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਸਵਤੀ ਰਿਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਘੱਗਰ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਸ ਲਿਖੇ ਗਏ 4ਵੀਂ-5ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਰਸਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸੇ ਦਿਸ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਵੇਦ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ ਐਂਡ ਅਥਰਵਵੇਦ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਟੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਾਂਕਿਆਸ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚੁਅਲਸ ਐਂਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਸ ਇਹ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਚੁਅਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਹਿਤਾਸ ਇਹ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸੰਹਿਤਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਡਾਇਲੌਗਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਯੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਆਰ ਲਾਈਕ ਏ ਕਥਾ। ਸੋ ਇਹ these are narratives and dialogues। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਰਿਟਨ ਔਨ ਦ ਬੈਂਕਸ ਆਫ ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਕੈਨ ਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 164 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15% ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 15% ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਉਹ ਨੇ 117। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 100 ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ 15 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 17 ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ 15% ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ 170 ਤੇ 85 255। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। that means 2.5 ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। that means 18 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? 18 ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? 18। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 164 1A provide total number of ministers including the CM in the council of ministers shall not exceed 15%। including chief minister ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? 18 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ is Asia's largest dam having height of, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਹਾਈਟ ਆਫ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 225.56 ਜਾਂ ਆਪਾਂ 226 ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 226 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 225.56 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਮ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੇਰੀ ਡੈਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਗੀਰਥੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਇਹ 260 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਰੀ ਡੈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। When was ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸਡ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਇਹ 28 ਜੁਲਾਈ 1925 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? ਇਹ 28 ਜੁਲਾਈ 1925 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਇਆ 1/11/25 ਤੋਂ, 1/11/1925 ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ? that is 1900 ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ 28 ਜੁਲਾਈ 1925 ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ was associated with which of the following movements? ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। he was not associated with the ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ। they were associated with the ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਦੇ USA ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਭਾ
ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਪਰਸਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹੀ ਵਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫॉर ਕੁਆਇਟ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, most significant cause was the creation of distinct Punjabi speaking state. He began hunger strike 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਲੀਚੀ ਐਸਟੇਟ? ਲੀਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਚੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਐਸਟੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੀਚੀ ਐਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਏਗਾ। Who among the following has been the youngest recipient of ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੁਰਜੀਤ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਦਲੀਪ ਕੋਟਵਾਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲੀ ਇਜ਼ ਦ ਯੰਗੈਸਟ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ। 1936 ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ, ਔਰ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੌਂਗ ਪੋਇਮ ਹੈਗੀ ਲੂਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਇਮੈਂਸੀਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। Which one of the following dances can be performed even in the sitting posture? Even in the sitting posture, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਡੰਕਾਰਾ, ਧਮਾਲ, ਲੁੱਡੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੁਰਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਧਾ ਅਕਬਰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਈਵਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਹੈ? ਇਹ ਜੁੱਲੀ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੁੱਲੀ ਡਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। Which of the following places said to be the home of Maharaja Ranjit Singh Summer Palace? Summer Palace ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Summer Palace ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ? ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰਾਮ ਬਾਗ। ਰਾਮ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਬਾਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਮ ਬਾਗ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਦ ਸਮਰ ਪੈਲੇਸ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਟਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡੀ ਪਲੇਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ।
ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਨਾਸਰ ਗਾਰਡਨ ਸੰਗਰੂਰ, ਇਹ ਜੀਂਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਨਾਸਰ ਗਾਰਡਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਗਾਰਡਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਗਾਰਡਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਲਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਮਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਰਾਮਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਗੇਟ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਇਹ, ਗੇਟ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Which of the following country is area wise smaller than Punjab? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਲਮੋਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ 50,362 ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਕੋਈ 60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ 41,285 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸਟੂਪਿਡ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਟਲਸ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। Where is ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ situated? ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ? ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੇਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੇਟਾ। ਇਹ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗੜੇ ਤੋਂ ਪਾਲਮਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। Who built ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ in ਪਟਿਆਲਾ? ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੱਡ ਫੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੋਤੀ ਬਾਗ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਛਮਣ ਝੂਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ। Which is the correct order of ਅੰਬਰਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ when arranged in descending order of their popular? Descending ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰਲਾ, that means 10, 9, 8, 7 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ descending order in their population।
ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਊਗਾ 1 ਨੰਬਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 1 2 3 4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੌਰੀ 4 4 1 3 2 4 1 3 2। ਸੋ ਦਿਸ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਏਰੀਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਏਰੀਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ population divided by density, population divided by area will give you density of the area। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਲੀਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੋਸਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਕਤਸਰ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 348 ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 975 ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 551 ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 348, ਮਾਨਸੇ ਦੀ 350, ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ 2011 ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ 2021 ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਹਾਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਥੇ 975 ਪਰਸਨਸ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਔਰ ਲੀਸਟ ਮੁਕਤਸਰ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ that was the population, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ। density is area divided by population. In comparison to 2001 census, the population of Punjab as per 2011 census has increased। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 2,70,00,000 ਹੋ ਗਈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 2001 ਵਿੱਚ 244 ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 277 ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 244 ਤੋਂ 277, ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। The parents of Guru Nanak Dev Ji belong to Khatri Hindu community, so you can very well say they belong to the Khatri Hindu community। Next question है, who composed the famous poem Heer Ranjha? Heer Ranjha ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ famous epic ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲੂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰਦੌਸੀ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਪਿੱਲੂ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਾਫੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਫਿਰਦੌਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਜ਼ਨੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ।
और इट इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट पोएम रिटन एवर। और ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਲੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਢ ਕਲੇਜਾ ਲੈ ਗਈ ਖਾਨ ਖੀਵੇ ਦੀ ਧੀ, ਗੱਜ ਗੱਜ ਲੰਮੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਰੰਗ ਜੋ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਜੇ ਦੇਵੇ ਪਿਆਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਪੀ, ਜੇ ਮਾਰੇ ਬਰਛੀ ਕੱਸ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੀਲੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾय ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀਆਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੀਤਾ, ਨਾਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤਾਂ, ਨਾਮ ਹੈ ਮੂਸਾ ਨਾ ਫਰੌਨ, ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਫਾਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਕਰ ਝੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੁਰਲਾਇਆ ਕਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ poems ਨੇ they are by ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੀਗੀ that is ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਵ ਐਪਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਐਪਿਕ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇਸ ਐਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਐਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਚ ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਲਤ ਹੈ। who was, because which is used for who was used for a person, which is used for a non-living thing. Who was the last governor of British province of Punjab before independence? ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ E.M. ਜੈਨਕਿੰਸ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ? E.M. ਜੈਨਕਿੰਸ was the last governor of Punjab, lieutenant governor of Punjab. Okay, Mountbatten was the last viceroy and the first governor general of India, of the independent India. Dominion, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਡੋਮੀਨੀਅਨ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਡੋਮੀਨੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ? ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਬਣਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸੀਗਾ। So these are a few questions which you have discussed. So ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਰੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ और ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ याद भी रखो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अपना नेक्स्ट सेक्शन कंप्लीट करते हैं। जीके क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस रहे हैं, उसके आसपास की एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, चलिए वी विल स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वो है Which vitamin is provided by sunlight to the body? ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, सूर्य किरणों से? तो आंसर क्या है? विटामिन डी। अब क्लास क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि हमें सूर्य से सनलाइट नहीं मिलता है, विटामिन डी नहीं मिलता। विटामिन डी हमारे स्किन पर प्रेजेंट होता है, लेकिन जब धूप उसके ऊपर पड़ती है तो उसको सिंथेसाइज करता है। तो ये ध्यान रखना है, विटामिन डी को सिंथेसाइज करने के लिए विटामिन डी जो सनराइज की जरूरत होती है, हमें उससे विटामिन डी मिलता नहीं है। स्किन के ऊपर होता है विटामिन डी, उसको सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। ठीक है,
इसके बाद डायमंड इज द हार्डेस्ट देन द ग्रेफाइट बिकॉज, अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायमंड ग्रेफाइट से क्यों हार्ड है। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इज योर डायमंड, तो डिफरेंस ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो डायमंड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट से डिफरेंट होता है, ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, इसलिए वो आपको कैसा दिखाई देगा, ज्यादा हार्डर दिखाई देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्लैनेट्स आर, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप बाकी चीजों को देखते तो आपको पता लग जाता कि प्लैनेट चमकते नहीं है, तो ल्यूमिनस वाला तो सारे ऑप्शंस वैसे ही एलिमिनेट हो रहे थे, तो आंसर क्या बनेगा, नॉन ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज। ठीक है, ना चमकने वाली बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज है आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, हेनरी बैक्वेरल। तो अगर हम देखते हैं तो रेडियो एक्टिविटी के हमारे बैक्वेरल भी जो है वो यूनिट्स होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो बैक्वेरल की फॉर्म में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्वेरल ही थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मैड डॉग्स। ठीक है, वैसे तो रेबीज होता है जब बैट्स काट लेते हैं या डॉग्स काट लेते हैं, लेकिन इससे एक आगे का फिनोमिना हमें देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। आपको पानी का डर हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया होता है अगर आपको कोई डॉग या कोई बैट काट ले। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्किन डिसीज, इनमें से कौन सा डिसीज आपके स्किन के ऊपर है, तो इट्स प्लेगरा। ठीक है, काफी ज्यादा कंडीशन खराब होती है, रेडिश होने के बाद वो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे गलने वाली हो गई हो। ठीक है, तो प्लेगरा है। ठीक है, अनीमिया ब्लड है। ठीक है, रिकेट्स हड्डियों की है, ऑस्ट्रोमलेशिया भी आपकी हड्डियों की है। ठीक है, तो एक जो आपके पास चल रही है इन द फॉर्म ऑफ योर स्किन, दैट इज प्लेगरा। ठीक है, नेक्स्ट, विच वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द मैन, तो कॉपर है। चैल्कोलिथ एज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पहले तो स्टोन एज है ना हमारी सारी की सारी, चाहे वो पैलियो हो, फिर मीजो है, फिर नियो है। नियो के बाद हमें मेटल्स का पता लगा, तो हमने इसको नाम भी क्या दिया हुआ है, चैल्कोलिथ। इसलिए जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो उसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। ठीक है, चैल्कोलिथ के अंदर हमने किसका इस्तेमाल किया हुआ है, कॉपर का इस्तेमाल किया। ब्रॉन्ज वाज यूज्ड ड्यूरिंग द, व्हेन हमें टिन कॉपर के बारे में पता लगा, उसको मिक्स करके हमने एक अलॉय तैयार किया और उसको क्या नाम दिया, ब्रॉन्ज। ठीक है, चलिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डू वी एसोसिएट द माइक्रोलिथ इंप्लीमेंट्स। ठीक है, माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे पत्थर, जब बड़े पत्थर टूट के छोटे में कन्वर्ट हुए, तो वो एज कौन सी थी आपकी, मीजोलिथ एज थी। ठीक है, मीजो का मतलब होता है ट्रांजिशनल टाइम पीरियड, जब क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, तो वेदरिंग होती है ना, वेदरिंग की वजह से आपको दिखता है कि हमारे स्टोन्स में, हमारे सोल्स में फर्क आ जाता है, तो मीसोलिथिक एज के अंदर आपको ट्रांजिशन दिखता है कि मैक्रो बड़े पत्थरों से टूटकर आपके क्या बन जाते हैं, माइक्रोलिथ बन जाता है। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द गायत्री मंत्र, आपको पूछा गया कि किस वेद में गायत्री मंत्र बताया गया है, तो आंसर क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, थर्ड मंडल, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या दिया गया है, सूर्य गायत्री मंत्र दिया, सावित्र यानी सावित्र देवी को और सूर्य को समर्पित है ये। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि पहली काउंसिल कहां के, काउंसिल में कौन थे चेयरमैन, सेकंड के कौन, थर्ड के कौन, फोर्थ के कौन, फर्स्ट के कौन। ठीक है, तो फर्स्ट काउंसिल के आपके महाकश्यप थे, सेकंड काउंसिल के सभाकर्मी थे, थर्ड काउंसिल के मोगलीपुत्र तीसा थे, और चौथे के आपके पास कौन थे, वास्तुमित्र। ठीक है, तो सारे के सारे जो आपके हैं वो एक सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं, दे ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वर कॉमन टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो पंथ हैं उनके बीच में क्या कॉमन है, सबसे पहले वो कहता है डिनाइनल ऑफ द अथॉरिटी ऑफ वेदास, कि आप वो वेदास को रिजेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक था। ठीक है, कंडेमनेशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, जानवरों की जो बलियां दी जाती हैं वो उसको, ठीक है, उसको भी उन्होंने मना किया, बिल्कुल ठीक है। परसुएशन को सेल्फ एसेस्टिज्म, ये दोनों एक जगह पर थी, दूसरी जगह पर नहीं है, बुद्धिज्म में एब्सेंट है ये। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, इसको जैनिज्म तो मानती है लेकिन बुद्धिज्म नहीं मानती। रिजेक्टेड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, दोनों नहीं मानते। ठीक है, तो 1 एंड 2 इज द कॉमन। ठीक है, चलिए, क्योंकि बुद्धा ने अपने आप को एग्नोस्टिक कहा था, उन्होंने कहा था मुझे कारण नहीं पता है, लेकिन रिजेक्ट नहीं किया था। ठीक है, चलिए, द फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगध किंगडम इन द 6th सेंचुरी बीसी वाज बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार ने इसकी शुरुआत की थी, और जो वंश शुरुआत हुआ था उसको नाम दिया जाता है हरियांग। इस वंश के अगले राजा थे आपके पास अजात शत्रु। ठीक है, उसके बाद थे उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। ठीक है, तो 3 इस वंश के थे। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट वंश आता है दैट इज सुंग वंश, शिशुनाग, शिशुनाग के बाद आता है नंद, नंद के बाद आता है आपका मौर्यन वंश। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन अंपायर अबडिक्टेड हिज थ्रोन
एंड माइग्रेटेड टू द साउथ टू लिव एज अ जैन एसेस्टिक। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट डेज में क्या किया था, जैनिज्म के जो कंसेप्ट्स हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया था, जैनिज्म को एम्ब्रेस किया था। ठीक है, अंडर द भद्रा बहु। और ऐसा माना जाता है कि शरवण बेलागोला जो कि आपके बेंगलोर के पास है, कर्नाटका के अंदर जो मैसूर के जंगल है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी ड्यू टू द स्लो स्टारवेशन। ठीक है, अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था, बिंदुसार ने अडॉप्ट किया था आपका आजीविका। तो तीन डिफरेंट रूलर एक ही डायनेस्टी के तीन डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए द इंप्रेशंस ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये कंसेप्ट कहां से लिया गया, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का बड़ा फेमस है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये लिया गया। ठीक है, चलिए विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ बिकमिंग अ सिटीजन। ठीक है, देखो बाय बर्थ तो मिलती मिलती है, बाय डिसेंट अगर आपके पूर्वज वहां पे हो, नेचुरलाइजेशन आपको बहुत लंबे समय से भारत में रह रहे हो और भारत के लिए कॉन्ट्रीब्यूटर हो। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी एक्वायर करने से कोई भारतीय नहीं बन जाता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी पेपर में रिसेंटली था कि 5 करोड़ रुपए देकर आप बन जाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करोगे, बिजनेस करोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। Who is the contempt to prescribe condition as for acquiring the Indian citizenship? वो कहता है कि अगर इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करना है तो इसके लिए प्रावधान कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाती है। 2019 में हुआ था ना सीए एनआरसी वाला, वहां से भी याद रख सकते हो कि अमित शाह मोदी जी के खिलाफ काफी सारे नारे हुए थे ना, तो पार्लियामेंट बनाती है इसको। ठीक है, बाकी किसी के पास पावर नहीं है इसकी। Which one of the following does not constitute electoral college for electing the president of the India? अब वो कहता है कि प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो कौन वोट नहीं डालेगा। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा बिल्कुल ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा बिल्कुल ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ काउंसिल, काउंसिल को वोटिंग राइट नहीं है, प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी वोटिंग राइट नहीं होता है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, दे भी वो भी आपके वोट नहीं करेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द, अगर राष्ट्रपति समय से पहले अपना इस्तीफा देना चाहता है, रिजाइन करना चाहता है, तो किसको रेजिग्नेशन देगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को। और इसी समय आपके वाइस प्रेसिडेंट देश के क्या बन जाते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम कितने पीरियड तक ये काम चल सकता है, 6 मंथ, ये भी याद रखना है आपको। 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और किसी सूरत में अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पोस्ट दी जाती है। ठीक है, ऐसा कहीं रिटर्न प्रावधान नहीं है, बट ये हो चुका है इसलिए ऐसा माना जाएगा। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। ठीक है, ठीक है, कमांडर इन चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको याद रखना है कि वो एग्जीक्यूटिव हेड भी है और आपके सुप्रीम कमांडर डिफेंस फोर्सेज का। ठीक है, दोनों ऑप्शन ध्यान से देख लिया करो, कि बार आप पहले ऑप्शन को देख के फैंसी हो जाते हो कि कमांडर इन चीफ तो है ही डिफेंस फोर्सेज का, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी तो है, तो दोनों ऑप्शन जहां पे जा रहे हैं। ठीक है, जीएसटी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टैक्स, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है क्लास, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में, डायरेक्ट टैक्स नहीं है ये आपका। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है जीएसटी। चलिए जी, नगादग पेल जी कॉर्लो, ये हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन है भूटान का, जो अभी रिसेंटली किस भारत की डिग्निटी को दिया गया, जब वो भारत के भूटान दौरे पर गए हुए थे 17 दिसंबर को, तो ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको दिया गया। अभी तक के भारत के सबसे हाईली डेकोरेटेड प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, तकरीबन तकरीबन जहां भी गए हैं उनको वहां के हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा जा चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो याद रखना आपको। ठीक है, गादंग पेलगी कार्लो। ठीक है, इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई ऑफ $87.97 बिलियन इन 2021, लेकिन हमें मैक्सिमम एफडीआई आई कहां से, क्वेश्चन ये है, तो आंसर क्या है, सिंगापुर। अभी 2022 के अंदर भी रिकॉर्ड टूट चुका है $87 बिलियन का टिल द टाइम। हमारे पास एफडीआई आ चुका, रेमिटेंस भी आई है क्लास, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेमिटेंस और एफडीआई के मामले में बहुत आगे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए दिसंबर 18 is observed as a minority right day in India. Government has recognized 6 communities as the minority. Which one of the following is not a minority? minority कौन सी नहीं है? ठीक है, तो सिंधी माइनॉरिटी नहीं है, सिख भी है, बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है, आपके मुस्लिम भी है, ठीक है, आपके पारसी भी है और क्रिश्चियन भी है।
ठीक है। 6 कम्युनिटीज हैं आपके भारत में जो कि माइनॉरिटी काउंट होती है, रेस्ट दे डज नॉट बीन काउंट इनटू द माइनॉरिटी, ठीक है। चलिए, द थर्ड इंडियन सेंट्रल एशियन डायलॉग बिटवीन द फॉरेन मिनिस्ट्रीज ऑफ द एशिया एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। भारत और जो सेंट्रल एशिया के मुल्क है उनके बीच में काफी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है दिसंबर 18 और 19 को। क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं है। प्लस देखो, न्यूज में ना कई बार ऐसे खबरें देखने को मिलती है कि डायलॉग्स हुए हैं, कोई मीटिंग्स हुई हैं, तो उसको ज्योग्राफी से रिलेट कर लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बताओ कि इनमें से कौन सी जगह जो है ये पर आपकी उसमें नहीं आती, सेंट्रल एशिया में नहीं आती। तो अजरबैजान इज इन यूरोप, इट्स नॉट इन एशिया, ठीक है। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान सब एशिया में है, अजरबैजान यूरोप में पड़ता है आपका, ठीक है। बाकू कैपिटल है इसकी। नेक्स्ट, द WHO issued a emergency of use listing of Covovax, ठीक है, a protein based एंटी कोविड वैक्सीन। बड़ा इंपॉर्टेंट खोज थी ये भारत की, ठीक है, एंटी कोविड जो प्रोटीन बेस्ड थी, ठीक है। तो इसको इंडिया की किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट, जिसका श्रेय भी जाता है कि भारत की पहली जो वैक्सीन थी कोविड शील्ड वो भी सीरम इंस्टीट्यूट ने ही बनाई थी, दैट इज योर पूना, ठीक है। नेक्स्ट, सुपर टाइफून राई, ये रिसेंटली एक कंट्री को हिट करके गया है जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उसके साउदर्न आइलैंड्स को। तो ये कंट्री थी आपकी फिलीपाइंस। 16 दिसंबर को ये दर्दनाक घटना थी जिसमें काफी लोगों की जान गई है, ठीक है। नाम याद रखना है टाइफून का, क्या था? राई। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर द ऑन December 18 a न्यू जनरेशन मिसाइल अग्नि-P, ठीक है। P मींस प्राइम है यहाँ पर, फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड दैट इज इन द ओडिशा, ठीक है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा है इसके बारे में। तो क्रूज मिसाइल का दिया होता है, क्रूज मिसाइल नहीं है क्लास ये, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है। इट कैन कैरी ए न्यूक्लियर वेपन लोड, ठीक है। बैलिस्टिकल मिसाइल है, क्रूज नहीं है, बैलिस्टिकल है, ठीक है। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम रेल और रोड, ये कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है, इसकी बड़ी खासियत है ये, ठीक है। एक्सटेंडेड रेंज है ये आपके अग्नि की। The Indian Air Force signed a memorandum of understanding with which of the institution of technology to support its efforts towards the indigenous solution in various weapon system. बहुत सारे वेपन सिस्टम्स को भारतीय तौर पर सोल्यूशन देना। हमें हर चीज के लिए हम खरीद तो लेते हैं लेकिन उसको फिर बाहर रिपेयर करवाना पड़ता है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो खरीद लिया खरीदे लेकिन उसकी मेंटेनेंस भारत में हो। तो उसके लिए उन्होंने एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास के साथ टाई अप किया ताकि हम आत्मनिर्भरता को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। हमारा बहुत खर्चा होता है क्लास, आपने भी रिसेंट न्यूज में सुना होगा कि $450 मिलियन दिए हैं पाकिस्तान को आपके यूएसए ने ताकि वो F-16 की मरम्मत कर सके, उसकी सर्विस कर सके। तो भारत ने ऑब्जेक्शन किया इसका, तो हम लोग खुद करते हैं, ठीक है। चलिए, द गवर्नमेंट हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ सेटिंग अप ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन जैतपुर, ठीक है। जैतपुर में भारत का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा। ये कौन सी स्टेट में है? दैट इज इन द महाराष्ट्र। बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है। आने वाले समय के लिए भी आपको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए क्लास, बिजली पैदा करने के लिए, क्योंकि जो आप सपना देखते हो कि 24 घंटे भारत में बिजली होनी चाहिए, वो यहीं से पूरी हो सकती है क्लास, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलाउड टू डू गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेसेस, ठीक है। गवर्नमेंट जो एजेंसी बिजनेस है वो कौन कर सकते हैं? प्राइवेट बैंक भी करते हैं, पब्लिक भी करते हैं, शेड्यूल पेमेंट बैंक भी करते हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट के लिए। आरबीआई इसको रेगुलेट करवाती है, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहीं तक थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेक्शन के लिए जुड़े रहिए क्लास। टिल देन, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर सैटरडे आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाया जाता है, तो मैं आशीष आज आपका फिर से स्वागत करता हूं इस मॉक टेस्ट डिस्कशन में, जिसमें कि आपको पता है कि हर हफ्ते हम आपके लिए कंप्यूटर के मौके डिस्कशन जो है करते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, contains specific rules and words that express the logical step of an algorithm। अब एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों में से अगर किसी को नॉलेज है तो किसी ने पढ़ा होगा इफ एल्स, अगर किसी ने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप में से किसी को नॉलेज है तो इफ एल्स, ठीक है, डू, व्हाइल, लूप, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं।
तो उनके लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिंटेक्स बना होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना हुआ होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे रूल को एक पर्टिकुलर सिंटेक्स में हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसलिए इस वजह से आंसर क्या जाता है, सिंटेक्स। अब प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर की अलग बात आती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा, आंसर नहीं बनेगा। लॉजिकल चार्ट का मतलब होता है आपके पास जो फ्लो चार्ट उसे बोलते हैं, पर यहाँ पे एक्सप्रेस की बात करी गई है तो आंसर फिर से क्या जाएगा आपके पास, सिंटेक्स ही यहाँ पे आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्या है, चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में अगर आप लोग कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, एडजस्टिंग। अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूं तो क्रिएट का मतलब होता है कोई न्यू क्रिएट करना, तो ये तो कभी आंसर बनेगा नहीं। मॉडिफाई का मतलब होता है उसी में ही कुछ मॉडिफाई कर देना, ठीक है। अब मॉडिफाई का मतलब अपने आप में क्या है, कुछ नई कंपोनेंट ऐड कर देना। जैसे बोलते हैं ना, गाड़ियों को मॉडिफाई करवा दिया है, पहले क्या थी अब क्या थी, ठीक है। तो एडजस्टमेंट और ये भी नहीं बनेगा। एक्चुअल में जो यहाँ कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में कुछ भी आप लोग चेंजेस करते हैं तो उसको एडिटिंग बोला जाता है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इस चीज को हम लोग नाम देते हैं एडिटिंग। मॉडिफाइंग यहाँ पे नाम नहीं दिया जाता है, यहाँ पे नाम दिया जाता है एडिट करना। चेंजेस को हम लोग जनरली यहाँ पे नाम देते हैं एडिटिंग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी अगर हम एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल फोन के ऊपर कोई गेम ओपन करते हो तो आपने देखा कि आपने जैसे ही गेम चलाई तो गेम वो चली नहीं। तो हुआ क्या कि सबसे पहले जब भी गेम हम चलाते हैं तो सबसे पहले हमारा मोबाइल फोन या हमारा सिस्टम से अपने ऊपर ये चेक करेगा कि क्या उसके पास उतना अप्रोप्रिएट स्पेस है जिससे कि इस गेम को चलाया जा सके। तो जब उसने पाया कि उसके पास उतना अप्रोप्रिएट स्पेस नहीं है तो वर्चुअल मेमोरी क्या करेगी, हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस को बोरो करती है। हार्ड डिस्क से कुछ स्पेस क्या करती है, बोरो करती है, और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या करती है, एग्जीक्यूशन करवा देती है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअल मेमोरी का मीनिंग है, अ मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द सीपीयू यूज टू एक्सटेंड द रैम। अब जैसे ही हार्ड डिस्क से बोरो करेगा तो उस टाइम पे क्या है, आपकी जो प्रोसेस आप लोग चलाना चाहते थे वो क्या है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर जाता है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या है, एक्सटेंड करना है रैम को हार्ड डिस्क से वैल्यू को उठा के। तो आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर्स यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशन। तो पहला ऑप्शन है डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल। ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन मेथड होते हैं। डेसिमल होता है आपके पास, हेक्साडेसिमल है और ऑक्टल है। अब मैं बात करूं बाइनरी भी मेथड होता है, पर बाइनरी की अगर बात करें तो सबसे पहले ये एक तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, एक तो सबसे पहले ये स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग मानते हैं। और यहाँ पे स्टोर करने की बात करी गई है तो कंप्यूटर में जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म वो जो होती है वो होती है 0-1। तो स्टोर भी ऑब्वियस है इसी लैंग्वेज में तो होगा, तो इस वजह से इसका आंसर यहाँ पे क्या बनता है, बाइनरी बन जाता है, इसे 0-1 का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, आंसर इज डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, द की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। ऐसे कौन सी की है जो लॉन्च बटन को स्टार्ट करती है, एस्केप, शिफ्ट, विंडोज या शॉर्टकट। तो आपको पता है यहाँ पे विंडोज की जो होती है वो क्या करती है, लॉन्च बटन को स्टार्ट आपके पास करती है। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सी ऑप्शन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू मूव द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द की। मतलब आप कहीं किसी लाइन के बीच में है और आपको स्टार्टिंग में आना है, बिगिनिंग का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो कौन सी की दबाएंगे तो उस पैरा की आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो होम की अगर आप लोग दबाते हैं तो आप पेज की पहली लाइन के पहले कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे पूरी लाइन है, आप यहाँ पे थे तो होम की दबाएंगे तो आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये यहाँ पे होम की दबाने से होता है। तो ओल्ड पेज और एंटर से ये नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, when sending an email the line describe the contents of the message। ऐसी कौन सी लाइन होती है कि उसके पूरे के पूरे मीनिंग को डिफाइन कर देती है। टू है, सब्जेक्ट है, कंटेंट है, सीसी है। तो आप लोग जानते हैं सब्जेक्ट में ही हम लोग यहाँ पे सारी हेडिंग लिख देते हैं। अब जैसे किसी को लीव चाहिए तो उसमें वो लिख देगा कि मैंने यहाँ लीव के लिए एप्लीकेशन है। सब्जेक्ट में डालते हैं ना कि आपका सब्जेक्ट क्या है, किसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो कोई जॉब के लिए तो रिगार्डिंग जॉब, इस तरीके से कुछ ना कुछ टाइटल आप लोग देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, सीसी आपके पास यहाँ पे है, कई बार पेपर में पूछ ले जाता है, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी। तो आप आंसर करेंगे कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी ये आपको याद करना है, आपको आंसर करना है कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म जो है होता है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप डू यू वर्क विद व्हेन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन। जब भी आप फॉर्मेटिंग करते हैं तो सबसे पहले किस में जाना पड़ता है, टेबल में। टेबल के अंदर क्या है, पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर क्या होते हैं, इंडेक्स में आप लोगों को यहाँ पे जाना पड़ता है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर ये पूछा गया, जो ऊपर आपके पास यहाँ पे टैब नहीं बनी हुई होती है, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखा हो इस तरीके से बटन बने हुए होते हैं, यहाँ पे इसके बारे में पूछा गया है। तो पहले टेबल के अंदर जाते हैं, फिर पैराग्राफ आता है, फिर इंडेक्स आता है, तो आंसर इज ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो अब मैं लार्जेस्ट यूनिट की बात करता हूँ, जीबी, केबी, एमबी, टीबी। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है, टीबी। टीबी स्टैंड फॉर टेराबाइट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है, टेराबाइट। तो होपफुली ये बात आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, द टेल्स कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट। ऐसी कौन सी चीज है जो कंप्यूटर को बताती है कि अपने कंपोनेंट को किस तरीके से यूज करना है, यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एक्चुअल में विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बताता है हमें कि हमारे सॉफ्टवेयर को कि कैसे तुम रिएक्ट करोगे, कैसे तुम काम करोगे। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यहाँ पे डिफाइन किया जाता है हर चीज को। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो यहाँ पे खत्म। बाकी हम मिलेंगे आपके साथ फिर से नेक्स्ट में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੈਲੋ एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। हाँ जी, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਸਾਇਲੋਜਿਜ਼ਮ। all rings are birds, all rings are birds, some birds are cage, all cage kite। first all kite कि सारे दे सारे काइट अंदर है ना, ऑल काइट तो नहीं है। सम काइट, काइट दा कुछ पार्ट रिंग भी नहीं है। सम बर्ड, बर्ड दा कुछ पार्ट काइट है, यस। ऑल रिंग्स आर काइट कि सारे दे सारे रिंग्स काइट दे अंदर है ना, तो आंसर क्या आएगा अपने कोल, ओनली 3 फॉलोस। हाँ जी, नेक्स्ट इज गर्ल is written as HJSM +1 +1 +1 +1। ठीक है जी। what does, क्या RNES क्या करें हम, +1 कर लें। हाँ जी, S एक ही ऑप्शन दिख रही है मुझे, S वाली, दैट इज सॉफ्ट, है ना। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू व्हाट, पजल्स का छोटा सा पार्ट प्लस ब्लड रिलेशनशिप की क्या गया, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन। ठीक है जी, दे आर प्रोफेसर, बिजनेसमैन, सीए, बैंक मैनेजर, इंजीनियर, मेडिकल, नॉट इन द सेम ऑर्डर। ठीक है जी, देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। इस फैमिली विच किन्ने 2 मैरिड कपल है। ठीक है जी, ओ द बैंक मैनेजर, ओ जो कि बैंक दा मैनेजर है, इज मैरिड टू लेडी प्रोफेसर। ठीक है जी, यह मेल होया फीमेल होया, आपा की फिल करता, बैंक दा मैनेजर फिल करता। ठीक है जी, क्यू मेडिकल इज द सन ऑफ एम, ओके, एंड ब्रदर ऑफ पी। क्यू जो कि मैडिकल मतलब डॉक्टर दी लाइन विच है, वो पी दा ब्रदर है, ते सन है किस दा, एम दा। सन है ना, एम दा। ठीक है जी, एंड द सीए इज डॉटर इन लॉ ऑफ एल, एंड जो कि सीए है वो डॉटर इन लॉ है किस दी, डॉटर इन लॉ है किस दी, एल दी। इतों मैनू एक गल समझ आई, एम इन्हां दा बेटा होएगा, उसकी वाइफ होएगी एन जो कि सीए है, अगे उन्हां दे 2 बच्चे है, एक तां पी ते एक क्यू जो कि मेडिकल लाइन
है। ठीक है जी, अपने कोल की फिल हो गया, ओ फिल हो गया, एम फिल हो गया, एन फिल हो गया, क्यू फिल हो गया, पी फिल हो गया, बचा की एल। लो जी इत्थे आ गया एल। ठीक है जी, इस तो बाद मैनेजर फिल हो गया, लेडी सीए फिल हो गया, लेडी प्रोफेसर फिल हो गया, होर मैडिकल फिल हो गया, एक इंजीनियर बचिया ते एक बिजनेसमैन बचिया। ठीक है जी, अगे पी अनमैरिड है। ठीक है जी, इंजीनियर। ठीक, एल इज ग्रैंड मदर ऑफ क्यू बन गया है ना, ते आह की हो गया बिजनेसमैन हो गया। मेल फीमेल आपां नूं दस्सिया नहीं सी, 2 मैरिड कपल सी, इन्ना ही दस्सिया सी, 6 लोग है फैमिली च, यह दस्सिया। चलो पी की लगदे क्यू दा, पी की लगूगा ईदर ब्रदर और सिस्टर। अगे प्रोफेशन ऑफ एम, एम दा की प्रोफेशन है बिजनेसमैन है। अगे प्रोफेशन ऑफ एल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोफेशन ऑफ एल, एल की सी, हाँ जी एल की है लेडी प्रोफेसर सी। लो जी, उस तो बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल, एक तो एम एन कपल सी, एक ऊपर केड़े कपल सी, टॉप वाले कपल का नाम की सी, ओ एल, ओ एल, नन ऑफ दीज आंसर आएगा। हाँ जी, ओ की लगता है क्यू दा, की कहोगे हाउ इज ओ रिलेटेड टू क्यू, ओ की लगता है, ओ कित्थे बनाया सी आपां, देख ही लेने, इन्ना याद नहीं रहिंदा। ओ ग्रैंडफादर क्यू दे, ग्रैंडफादर। हाँ जी, आई होप इन्ना थोनू क्लियर होया होएगा। अगे अगला क्वेश्चन रिलेटेड टू कैलेंडर, की क्या गया, गीता करेक्टली रिमेंबर्स दैट हर फादर्स बर्थडे इज आफ्टर 8 बिफोर 12। ठीक है जी, हर ब्रदर जितेंद्र करेक्टली रिमेंबर्स दैट फादर्स बर्थडे इज आफ्टर 10th बट बिफोर 15। तब बर्थडे कदों होया, 11 नूं होया, तो आंसर की आऊगा 11। क्लियर, की फाइंड करना है, ऑपोजिट फाइंड करना है। ठीक है जी, एक दे ऑपोजिट की होया 4, 2 दे ऑपोजिट की होया 6, 3 दे ऑपोजिट की होया 5, अब 5 दे ऑपोजिट फाइंड करना है, की कवांगे 3। ठीक, हाँ जी, किसका क्वेश्चन है, स्टेटमेंट अजम्पशन, ड्यूटी एंड इनडिसिप्लिन हैव कम टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट द एम्प्लॉय आर, गलत, एम्प्लॉयर एक्सपेक्टेड टू डू, हाँ देखो ऑर्गेनाइजेशन विच की एक्सपेक्ट किया जाता है कि जेडे एम्प्लॉय है वो अपना काम कर रहे हैं, तो आंसर इज बी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वांट्स का क्वेश्चन आ गया थे। चलो नेक्स्ट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन विच की है, एक कुनाल है जो कि नॉर्थ वाल गया है, किन्ना 10, उस तो बाद की किता 6 आ गया साउथ वाल वापस, फिर उस तो बाद ईस्टर्न ईस्ट वाल गया तो किन्ना चलिया 3, फिर उस तो बाद की किता बस इत्थे रुक गया। हुण आपां की करना है, यह डिस्टेंस कढना है, यह 3, यह 4, यह 5। पूछा की डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट, की कहोगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, 5 नॉर्थ ईस्ट। ठीक जी, हाँ जी, 8 पर्सन है, स्क्वायर टेबल दे राउंड बैठे है। ठीक है जी, 2 ईच साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, देयर आर 3 लेडी मेंबर्स। ठीक है जी, तो नाल नाल नहीं बैठते, जे इज बिटवीन एल एंड एफ, जे एफ एल भी हो सकता है, जी इज बिटवीन आई एंड एफ,
FGI भी हो सकता है। H, a lady member is second to the left of J। मैं इत्थों शुरू कर रही हैं, J दा right, J दा left। H lady member second left ते है, ठीक है जी। ते J दे नाल की सी L ते F, ते मैं L F इत्थे बनाया so that मैं F G I बना सका। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, H lady है, फीमेल है, ठीक। F मेल, F की है, मेल है, is seated opposite to E। F opposite है E दे लेडी मेंबर, इत्थे तो अपनी गड़बड़ होगी। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J, J दे सेकेंड लेफ्ट ते क्या सी, देयर आर 3, ठीक है कोई गल नहीं। एक मिनट, कई बार इस तरीके नाल हो जाता है, हो सकता है कि J इत्थे रख के सैट आ रहा होवे, ठीक है। J दा राइट, J दा लेफ्ट, इत्थे की आया सेकेंड लेफ्ट ते की आया, H आया। उस तो बाद H की है, लेडी मेंबर है, और की क्या गया, J इज बिटवीन L एंड F। लो L और F, और G is between I and F। G is between I and F। F male member, F male member, F male member is seated opposite to E, a lady member। ठीक है जी, ठीक है जी। देयर इज अ लेडी बिटवीन F एंड I, F ते I दे विच एक लेडी मैंबर, एक लेडी, दो लेडी, तीन लेडी, ठीक है जी। बाकी सारे की होए मेल। E F G H I J K, ठीक है। कई बार की हुंदे ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता नहीं लगता कि हुण की करिए। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨ ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ E ਹੈ, G ਹੈ ਤੇ H ਹੈ, EGH, ठीक है जी। हाउ मैनी पर्सन आर सिटेड बिटवीन K एंड F, K और F, इधरों भी तीन ते इधरों भी तीन। की कमांगे 3 पर्सन, ठीक है जी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मॉक टेस्ट का क्वांट का पार्ट, कंप्लीट सॉल्यूशन की हम बात करेंगे सभी क्वेश्चनों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोला गया देखिए, रवि एंड कुमार आर वर्किंग ऑन असाइनमेंट, रवि टेक 6 आवर्स टू टाइप 32 पेज। तो 6 आवर्स में 32 पेज टाइप करता है रवि। तो अगर पर आवर की अगर हम बात करें तो 32 डिवाइड बाय 6, तो 2 से डिवाइड करें तो 16/3 पेज वो पर आवर टाइप कर रहा है, ठीक है। वाइल कुमार टेक 5 आवर्स, और कुमार 5 आवर्स में कितने पेज कर रहा है, 40, तो 40 डिवाइड बाय 5, कुमार की एफिशिएंसी क्या हो गई, 8, ठीक है। हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन 2 डिफरेंट कंप्यूटर टाइप 110 पेज। तो देखो, अगर हम दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करें तो +8, एलसीएम लो 24 + 16, 40/3, कितना, 40/3। तो 110 को डिवाइड करो, 40 और 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका बनता है 33/4। और 33/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 81/4। क्या लिख सकता हूं, 81/4, मतलब 8 आवर्स 15 मिनट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं,
द इनकम ऑफ सुरेश एंड राकेश आर इन द 5:4 कि इनकम जो है वो 5 और 4 के रेशियो में है, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:2 और एक्सपेंडिचर किस रेशियो में है 3:2 कि इसने 5 रुपए कमाए तो 3 रुपए खर्च किए, इसने 4 रुपए कमाए तो 2 रुपए खर्च किए। इफ ईच सेव 6,000 देन सुरेश इनकम। देखो अगर हम बात करें यहां से 2 यूनिट की वैल्यू क्या है 6,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3,000 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहां से 3,000 हो जाएगी। तो उसने पूछा था सुरेश की इनकम 5 यूनिट, 5 इंटू 3 15,000। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया 4 पीपल आर रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड। देखो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करो, जो भी उसने ये टाइम दे रखा है इनका एलसीएम ले लो। 40, 60, 50, 60 और 330 इन सब का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो इन सब का एलसीएम क्या होगा हमारा 600 होगा। एलसीएम क्या होगा 600। अगर 600 को आप आवर्स में चेंज करोगे तो 10 आवर्स आ जाएगा। तो सुबह 9 बजे चलना शुरू किया था तो शाम को कितने बजे तक 7 PM। ठीक है 10 घंटे के बाद अगर आप काउंट करोगे तो 7 PM आपका राइट आंसर होगा। उमा स्टार्ट ए सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000। उमा ने 50,000 के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है आफ्टर 6 मंथ प्रिया ज्वाइन हिम विद एन कैपिटल ऑफ 80,000। 6 महीने के बाद उसको प्रिया ने ज्वाइन किया। आफ्टर 3 years दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 24,500। 3 साल के बाद प्रॉफिट हुआ, मतलब इसने तो पूरा 3 साल मतलब 36 महीने के लिए पैसा लगाया, इसने पैसा कितने महीने के लिए लगाया 30 महीने के लिए लगाया। ठीक है 20 से ये 40 से 40 आपकी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है अगर उसके बाद हम यहां से डिवाइड करें 6 से डिवाइड करेंगे 5 और 6 इसको किस पे डिवाइड कर देगा सॉरी 5 उधर जाएगा हमारा और ये किस पे डिवाइड होगा 6 पे। 5 से 5 कैंसिल। तो उमा और प्रिया का रेशियो अगर हम बात करें 3:4 मतलब टोटल 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू क्या है 24500। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, पहले डिवाइड करेंगे 3 पे, उसके बाद 35 फिर 5 पे डिवाइड होगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 3500। प्रॉफिट पूछा गया था उमा का तो 3500 इंटू 3 10,500। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दीपक was to get a 50% hike in his pay, but the computer operator wrongly typed the figure 80% and printed the new pay slip. He received a revised salary for 3 months before the organization realized the mistake. What percent of his correct new salary will get in 4th month if the excess paid to him in the previous 3 months is to be deducted from the 4th month? क्या कह रहे हैं कि उसकी सैलरी में 50% का हाइक होना था, बट कंप्यूटर ऑपरेटर की वजह से वो कितना हो गया 80% हो गया। अगर उसकी सैलरी 100 थी तो 80% के बाद कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी, बट एक्चुअल में कितना होना था 150 होना था। तो मतलब उसको 30 रुपए ज्यादा मिले हैं, उसको 30 रुपीज ज्यादा मिले हैं कितने मंथ तक 3 मंथ तक, तो मतलब वो 90 रुपीज ज्यादा ले चुका है। 4th मंथ में उसको 90 रुपीज कम मिलेंगे। ठीक है उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ हिज करेक्ट न्यू सैलरी विल गेट इन द 4th मंथ। तो 150 में से उसको कितना मिलेगा 90 हो जाएंगे कम, सिर्फ 60 मिलेगा। डिवाइड बाय 150 इंटू 100। देखो 30 से डिवाइड करोगे 2 और 5 से डिवाइड करोगे 20, तो 4th मंथ में उसको सिर्फ अपनी सैलरी का 40% मिलेगा। 60% उसका जो एक्सेस अमाउंट उसको मिला था उसमें डिडक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मैन कंप्लीट ए सर्टेन जर्नी बाय कार इफ ही कवर्ड 30% ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 60% ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है अगर टोटल डिस्टेंस को हम 100 मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस हम कितना, अगर 100 x ले लो,
या आप 100x ले लो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। 100x अगर मैं ले लूं तो ऊपर तो क्या आ जाएगा आपका 100x आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल टाइम। फर्स्ट 30 किलोमीटर मतलब 30x उसने कवर किया था किस स्पीड के साथ, 20 की स्पीड के साथ। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड आपका क्या होगा, टाइम होगा। 60% मतलब 60x डिवाइड बाय 40 और रेस्ट जो बचा था 10x वो उसने कवर किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। देखो सॉल्व करेंगे तो इससे तो ये 10 से 10 कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे 3/2 मतलब 1.5, ये भी कितना 1.5, 1.5 प्लस 1.5 3 प्लस 1 4, 4x, x कैंसिल, 100/4 मतलब 25 आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किरण एंड योगेश पार्टनर्स इन ए बिजनेस, किरण कंट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर 15 मंथ, 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर 15 मंथ एंड योगेश रिसीव्ड 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। देखो अगर मैं यहां से किरण और योगेश की बात करूं, उसने 1/4, तो इसने किरण ने 1 लगाया, तो बाकी बचा हुआ पैसा किसने लगाया था, योगेश ने लगाया था। ठीक है, और किरण ने जो पैसा लगाया था वो 15 मंथ्स के लिए लगाया था, और योगेश का हमें कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं इसने 22 मंथ्स के लिए ही पैसा लगाया था। एंड योगेश रिसीव 2/3, अगर टोटल प्रॉफिट 3 हुआ तो इसने 2 लिया और इसको 1 मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 30, 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू वाई, तो मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sohan invested 20,000 rupees in a fixed deposit at the rate of 10% simple interest. After every third year, he added interest. देखो पहले 3 साल में उसने 3 into 10, तो टोटल कितना इंटरेस्ट लिया, 30% का इंटरेस्ट लिया। कितना इंटरेस्ट लिया, 30%, तो 26,000 हो जाएगा, क्योंकि इसका जब 30% कैलकुलेट करोगे तो उसको जो इंटरेस्ट मिला था वो 6,000 रुपए मिला था। अब अगले 3 साल के लिए उसको इसके ऊपर 30% मिलेगा, और इसका 30% कितना होगा, 26 इंटू 3 क्या होता है, 7,800 हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं, द रेशियो बिटवीन द स्कूल एज ऑफ नीलम एंड पूनम, 2 लोग हैं, नीलम है और एक पूनम है, इस 5:6, और इनका जो रेशियो है वो 5:6 है। इफ द रेशियो बिटवीन 1/3 ऑफ नीलम इज, अगर ये 5x है तो इसको मैं x मान लेता हूं, तो 5x का 1/3 और इसका हाफ 3x हो जाएगा। इज 5:9, ये कितना है, 5:9 है। देखो अब यहां से घुमा फिरा के बात तो वही आ रही है, तो मतलब इस क्वेश्चन का डाटा ही कंप्लीट नहीं है, इसका आंसर हम नहीं बता सकते। ठीक है, इसका आंसर नहीं आएगा, CND। ठीक, सॉरी डाटा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि CND तो मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ए क्रिकेटर हैड ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 64th इनिंग, इन द 65th इनिंग ही बोल्ड आउट फॉर नो स्कोर ऑन हिज पार्ट, दिस बिगिंस डाउन इज एवरेज बाय 2 रन। देखो 64 इनिंग तक अगर उसका एवरेज x है, तो नेक्स्ट इनिंग में क्या होगा, 0 पे आउट, टोटल इनिंग 65, एवरेज x-2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 130, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130। तो हमें तो न्यू एवरेज कैलकुलेट करना था, तो 130 - 2, 128 उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 128 इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल्स ए कार प्राइस्ड एट 36,000, ही गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 8%। पहले 20,000 के ऊपर उसने 8% का डिस्काउंट दिया। अगर मैं इसका 1% की बात करूं तो इसका 1% 200, तो इसने मतलब 1,600 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट दिया। ठीक है, यहां 5% मतलब 800 रुपए का डिस्काउंट उसने यहां दिया, तो उसने टोटल जो डिस्काउंट दिया वो कितना दिया, 2400 का डिस्काउंट दिया। तो 36,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा कितना आएगा, 33,600। तो ऑप्शन ए में ही ये मैच कर रहा है, बाकी किसी में मैच ही नहीं कर रहा। सेकंड वाले को निकालने की जरूरत ही नहीं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड and 1/3 less than what he spends on food
on education on the children, what fraction of his income did he spend on food and transport? ठीक है, अब अगर टोटल x है, ठीक है, तो उसने 1/4 खर्च कर दिया था उसने फूड के ऊपर, एंड 1/3 लेस देन व्हाट इज स्पेंड ऑन फूड, जितना उसने स्पेंड किया था उसका 1/3 भी लेस, ठीक है, इनके अगर टोटल x है तो -1/3 ऑफ 1/4x, ठीक है, कितना उसने खर्च कर दिया, अब टोटल में से सब्ट्रैक्ट करो, 5/12 इसका राइट आंसर है, 5/12। चलो, a family, the father took 1/4 of the cake and he had 3 times as much as each of the other member had the total number of family members, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजिली आप इसको कर सकते हैं, इसका आंसर क्या है 10 इसका राइट आंसर है आपका, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 10। ऐसे क्वेश्चन कई बार हम कर चुके हैं। इन ए क्लास 75 स्टूडेंट, 1/5 द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड 3/5 द टोटल नंबर ऑफ बॉयज जॉइन क्रिकेट क्लब, ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज ज्वाइनिंग द क्लब इज 27, उसने क्या बोला था 3/5, मतलब 3/5, 3 की वैल्यू क्या है 27 इंटू 9 हो रहा है, तो यहां भी इंटू 9 करोगे तो मतलब बॉयज कितने हैं 45 है, बॉयज कितने हैं 45, तो गर्ल्स कितने होंगे 30 होंगे, तो टोटल तो 75 थे, टोटल क्या थे 75 थे। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ज्वाइनिंग द क्लब। अब हमें पता है कि बॉयज ने तो कितनों ने ज्वाइन किया था 27 ने ज्वाइन किया था, और 1/5 क्रिकेट यानी 1/5 इसका 6 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9/2, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्या कह रहा है, ए लार्ज वाटरमेलन कंटेन्स 20 kg, अगर 4% वाटर है तो पल्प का पार्ट क्या होगा 4% ऑफ 20 kg, और बाद में कितना बचा 5% ऑफ x, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, इसको 4 पे डिवाइड करेगा, 4 × 4 16। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूं मैं आप लोगों को, बहुत बार। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकता है। चलिए, थैंक यू। Hello everyone, welcome to the English section by Gyan. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. So guys, एक बार देख लेते हैं इंग्लिश के सेक्शन में आपके पास क्या आया है। स्टार्टिंग विद आपको बताना है यहां पर जिसको कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको इंप्रूव करना, अकॉर्डिंगली आंसर क्या आएगा। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द प्लान ब्रोक ओपन फॉर द वांट ऑफ फंड्स। फंड्स की कमी की वजह से क्या हो गया, द प्लान ब्रोक डाउन, टूट गया, खराब हो गया हमारा प्लान, फेल हो गया। द प्लेन टच डाउन एट दी हेथ्रो एट 6 PM ऑन शेड्यूल, बिल्कुल सही, शेड्यूल के अनुसार। द समर हैज सेट आउट, सेट इन का मतलब होता है शुरू हो गया है सब कुछ, और डेज वार्म होना शुरू हो गए हैं। टू बिगिन समथिंग, आई कैन नॉट पुट अप हो जाएगा, पुट अप इज रहना, विद दिस नास्टी फेलो। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग दी, ये क्या करना है आपको, idioms phrases. The dispute regarding the emoluments of junior doctors came to a head this week. Dispute came to a head का मतलब होता है, देखो जैसे आप क्राइसिस की बात करें, पहली बात तो क्राइसिस का मतलब होता है खराब होना, CRISIS का मतलब हो जाएगा एक क्राइसिस, अगर एक से ज्यादा क्राइसिस हो जाए इट बिकम्स SES। कहता है जो डिस्प्यूट चलता आ रहा था वो केम टू अ हेड आ गया ना। अब इसको याद करने का मीनिंग, हेड की तरफ आया, हेड का मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे कहते हैं ना भाई और बुरा हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक वायलेंस थी आफ्टर द डेथ ऑफ 6 यूथ्स, वो इट केम टू अ हेड, वो और ज्यादा बुरी होगी बिकॉज इट रीच्ड अ क्राइसिस, जहां पर वो चीज ठीक ही नहीं हो सकती थी। फॉलोड बाय इज अ स्ट्रेंज फेलो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद हिम, इट सीम्स दैट ही हैज अ बी इन हिज बोनेट। बीज इन अ बोनेट का मतलब होता है आपके पास किसी चीज का ऑब्सेशन है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आप किसी चीज को करके। नेक्स्ट, द फैक्ट्स ऑफ द केस वर ऑब्सक्योर्ड बाय द स्पीच ऑफ द डिफेंस काउंसिल। इसमें क्या करना है, ऑपोजिट बताना है। ऑपोजिट का मतलब ऑब्सक्योर्ड इज अपोज्ड टाइप, इसको ऑपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्लैरिफाई किया गया हो। नेक्स्ट, ड्यू टू द एक्सेसिव क्राफ्टीनेस ही अचीव सक्सेस बट लॉस्ट फ्रेंड्स। क्राफ्टीनेस इज बहुत ज्यादा बनावटी, उसका ऑपोजिट इज फ्रैंक और सिंप्लिसिटी। द गर्ल्स वोर ब्राइटली या ब्राइटर कलर्ड स्कर्ट्स, यहां ब्राइटर आ जाएगा या ब्राइट आ जाएगा, ब्राइटली तो नहीं आएगा, ब्राइट या ब्राइटर, राइट। सो यह
आपका आंसर ये हो जाएगा। द हेडमास्टर हैज अ वेरी लाउड वॉइस हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना, वी डिस्कस्ड अबाउट नहीं लगता, डिस्कस्ड ऑफ नहीं लगता, डिस्कस्ड कुछ नहीं लगता, ठीक है। वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे, डिस्कस्ड के साथ कुछ नहीं लगता। अंडरलाइन पार्ट की बेस्ट रिप्लेसमेंट, इफ सुनील वर प्रेजेंट, अगर सुनील प्रेजेंट होता, कंडीशनल सेंटेंसेस वर लगता है। द कैट हैज गॉट समवन्स टंग का मतलब होता है बेसिकली सीक्रेटिव रखना किसी चीज को। समवन इज रिमेनिंग साइलेंट, हाँ। सिनोनिम बताना है, हॉट ईयर का मतलब होता है somebody who is very arrogant, मतलब बहुत एरोगेंस शो करता है जो। और अब ये देखो जरा, यहां पर आपको इसका सिनोनिम बताना है। गाइज आपके पास वर्ड क्या एग्जैक्टली वर्ड आपके पास आ गया है, बहुत सिंपल सा। द वर्ड इज इम्पेक्नियस, इसका आपको ऑपोजिट नहीं सिमिलर बताना है। इम्पेक्नियस एग्जैक्टली होता क्या है? इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू कि भाई जिसको कहते हैं ना, मतलब परवरिश अच्छी नहीं की गई, इम्पॉवरिश टाइप। नेक्स्ट, दैट इज इट। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।